is most of the students have perplexity and they are confused that the students are from different levels. Okay, some of you are from FSC, some of you are matriculate, and some of you are from graduation, and some of you are master students. So here is a confusion. Let me clear your confusion regarding the session. I had a session, and in that session I had different kind of students like you. Okay, in that session one student was from class 8, another one was from class 9th, and the third one was from FSCR. I think she was from class 12th, okay, second year, and a fourth one was from master, if I'm not wrong. When I started the session, they were confused like you. I started the session and I would give them the same task and I would deliver them the same lecture. Each and everything was the same. But believe you me, when I completed the session, and even during the session, the student who was from class 8, her performance, her speaking, her writing, her listening skills, believe you me, all these were amazing. But if I compare the class 8 student and the master student, mean the lowest and the highest. So their skills regarding language, mean speaking and writing, that was the same. But here was a little difference, and that difference was because of the ideas. You know that if a student is from class 8, he or she would not have that much ideas, that much experience as graduation and master students have. That was the only basic gap between both of them. Got the meaning what I'm saying? So you don't worry about the session, and I'm fully convinced you will enjoy it. Okay? And one thing more, I'll deliver the lecture in Urdu language. Don't worry about it. I'll explain each and everything in Urdu language. But I'll deliver the lecture in Urdu language. But if you ask a question or if you want to talk to me, that will be in English. It's okay? Because you know better that it is our English class and we have to talk in English, if I'm not wrong. Okay? You'll enjoy it. तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ के बारे में कि सर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ मास्टर के लेवल से है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिकुलेट से। आपने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की ABC का पता है, मतलब इंग्लिश के लेटर्स का पता है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है? सेशन के लास्ट पे यार मेरे बात सुने, आप 15 डेज़ के बाद खुद ब खुद आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो बहुत इजी था, ये तो बहुत बड़ा वो पहाड़ खड़ा किया हुआ था हमारे सामने लोगों ने कि इंग्लिश ये इंग्लिश वो। बिल्कुल सिंपल तरीके से अभी क्लास शुरू करते हैं, वो टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि आपको पढ़ाना भी है ना। बातें तो बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम अपने फर्स्ट टर्म से, और वो है इंग्लिश, ठीक है? अब चूँकि इंग्लिश किया है तो इंग्लिश हमारे पास एक ज़बान है, इंग्लिश किया है एक लैंग्वेज है। जिस तरह आपको पता है कि उर्दू भी एक लैंग्वेज है, पश्तो भी एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ भी एक लैंग्वेज है। इन सारी लैंग्वेजेस की तरह इंग्लिश जो है वो क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है, ज़ुबान है, ज़ुबान, ठीक है? इसके बारे में एक जोक है लेकिन वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? कि लैंग्वेज किसको कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं ज़बान को, ठीक है? जबा, पश्तो में उसके हम कहते हैं जबा, लैंग्वेज, ज़ुबान। इंग्लिश हमारे पास क्या है? ज़बान है। बस सिंपल आपने ये अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि व्हाट इज़ इंग्लिश, आप सिंपल वर्ड्स में बताएं कि सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? एक ज़बान है। बस यहाँ तक काफ़ी है।
अब जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेजेस लेटर्स पे मुश्तमिल होते हैं, सिंबल्स पे मुश्तमिल होते हैं और अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास इंग्लिश के जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है या सिंबल्स है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो ए बी सी डी इसी तरह जी तक, ये इंग्लिश के क्या है? ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, इंग्लिश के सिंबल्स हैं और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर है। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज के अलीफ, आ, बा, पा, इसी तरह या तक, ये सारे उर्दू लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स है। और इसी तरह पश्तो लैंग्वेज में भी ये क्या है? ये हमारे पास है लेटर्स पश्तो लैंग्वेज के, या पश्तो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, या पश्तो लैंग्वेज के सिंबल्स। ठीक है। चूंकि हमारा जो काम है वो इन दो लैंग्वेजेस के साथ नहीं है, हमारा काम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स कौन से हैं, इसका डिवीज़न किस तरह हुआ है और इन लेटर्स का, इन सिंबल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है। ये हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल लेटर्स कितने हैं? ये हैं 26। और फिर हमने इन 26 लेटर्स को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं वावल्स, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और तीसरे को हम कहते हैं सेमी वावल्स। अब ये वावल्स और कॉन्सोनेंट का डिवीज़न जो हमने किया है, ये हमने क्यों किया है? किसी को पता है कि ये डिवीज़न हमने क्यों किया है? चलो कोई बात नहीं है। देखिए, पहले तो अंडरस्टैंड ये करें कि ये जो 26 लेटर्स हैं ये हमने डिवाइड किया है वावल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वावल्स में। ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वावल्स है वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 लेटर्स है, इन 5 लेटर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये है वावल्स। और अगर 26 से हम ये 5 माइनस करें तो ये कितने बन जाते हैं? ये 21 लेटर्स जो हैं इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और ये 4 जो हैं इसको हम कहते हैं सेमी वावल्स। ये जो डिवीज़न हुआ है ना, ये डिवीज़न ये लेटर्स के बेस पे नहीं हुआ है, ये लेटर्स के साउंड के बेस पे हुआ है, लेटर्स के साउंड्स की बुनियाद पे हुआ है, लेटर्स के आवाज़ों की बुनियाद पे हुआ है। ठीक है। कि वावल्स के जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स अलग है। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स जो है इनके साउंड्स, उनकी आवाज़ अलग है। तो इन साउंड्स की बुनियाद पे ये जो डिमार्केशन लाइन लगाया हुआ है, ये जो डिवीज़न हुआ है, ये साउंड्स की बुनियाद पे हुआ है, और फिर उसकी बुनियाद पे ये सेमी वावल्स भी सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब चूँकि आप सबको पता है, ठीक है, कि जो आवाज़ होती हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये एयर से प्रोड्यूस होती है, हवा से प्रोड्यूस होती हैं, लंग्स से। ये जो हमारा लंग्स है ना, इन लंग्स से, इन फेफड़ों से यहाँ से हवा आती है इस रास्ते। मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करूँ कि आपको सही तरीके से विजिबल हो। ठीक है। यहाँ से एयर आता है, हवा। ठीक है। और ये हवा मुंह के ज़रिए बाहर निकल आता है। ठीक है। इन फेफड़ों से हवा आता है और बाहर निकल आता है। अब जब ये हवा बाहर निकल आता है तो इन हवा की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अभी समझ आया? देखें सिंपल अल्फाज में, यहाँ से हवा आया और डायरेक्टली बाहर निकल आया, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं वावेल। ठीक है। और यहाँ से हवा आई और यहाँ पर जब पहुँची माउथ कैविटी में, तो या तो ज़ुबान ने स्टॉप किया, या टीथ ने स्टॉप किया,
या जुबान और टीथ ने स्टॉप किया या लिप्स ने स्टॉप किया, मतलब माउथ कैविटी में किसी अर्गन ने या दो अर्गन्स ने उसको स्टॉप करके फिर रिलीज किया और उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये है कॉन्सोनेंट्स। अभी समझ आया? यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। देखिए आप भी प्रोड्यूस करें तो आपके लिए फिर आसानी होगा। देखिए ए, ठीक है, तो हवा लंग्स से आया और डायरेक्ट माउथ कैविटी से निकल आया, आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, लेकिन एयर कभी भी स्टॉप नहीं हुआ, हवा स्टॉप नहीं हुई हुआ माउथ कैविटी में। तो ये जो ए है इसको हम क्या कहेंगे? वावल। अभी क्लियर हो गया? अब देखिए कॉन्सोनेंट पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहां तक एयर आया, स्टॉप हुआ, देखिए बी। क्लियर हो गया ना? अब देखिए बी, यहां से एयर आया, लिप्स ने एयर को स्टॉप किया और फिर उसके बाद आवाज प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। क्लियर हो गया? देखिए हंसे नहीं, आप मुझे हंसाते हैं। देखिए आपको किसी ने इंग्लिश पढ़ाया नहीं है ना, इंग्लिश तो मैंने आपको हकीकत में आपको बता रहा हूँ, आप और भी बहुत ज़्यादा हंसेंगे। एक मिनट सब्र करें। देखिए एक और एग्जांपल, सी सी सी, एयर आया माउथ कैविटी में और टंग ने स्टॉप किया और फिर उसके बाद रिलीज किया, तो उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस और क्लियर डिफरेंस है वो ये है कि वावल साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? हवा जब लंग से आता है और कभी भी स्टॉप नहीं होता, डायरेक्ट रिलीज होता है और उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है उसको हम वावल कहेंगे। और एयर लंग से आया माउथ कैविटी में मतलब मुंह में, ठीक है, मुंह में किसी भी अर्गन ने, दांत ने, लिप्स ने, ज़ुबान ने, टंग ने, किसी भी अर्गन ने उसे स्टॉप किया और फिर रिलीज़ किया और उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम कहेंगे कि ये हैं कॉन्सोनेंट्स। अभी समझ आया? मैं यहाँ पे सिंपल अल्फाज में अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये जो है वावल्स, ये होता है विदाउट स्टॉप और कॉन्सोनेंट को हम कहेंगे विद स्टॉप, यानी विदाउट स्टॉप ऑफ एयर, और ये विद स्टॉप ऑफ एयर। मतलब सिंपल अल्फाज में ये एयर स्टॉप होने के बगैर प्रोड्यूस होते हैं और ये एयर स्टॉप होने के साथ प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेमी वावल्स पे, अब क्लियर हो जाएगा। सेमी वावल्स जो है ये वो लेटर्स है कि है तो कॉन्सोनेंट्स, क्या है क्या? कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन ये कभी कभी वावल्स का काम भी करता है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं सेमी वावल्स। देखिए एच जो है हमारे पास, ये क्या है? ये तो इनमें नहीं है ना, ये तो वावल लेटर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कभी कभी ये वावल के साउंड को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह आर है, डब्ल्यू है, वाई है, ये लेटर्स जो है ये तो है तो कॉन्सोनेंट्स, ये क्या है कॉन्सोनेंट्स, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है? वावल के साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से हम इन चार लेटर्स को क्या कहते हैं? सेमी वावल्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। एच जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करता है और वावल साउंड भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? मैं कहता हूं हार्स, ठीक है, या हेन। यहां पर अगर आप देखें तो एच जो है ये हा साउंड प्रोड्यूस करता है और हा क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। अब देखिए हेन या हार्स, इसमें जो एच है
ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑनेस्ट वर्ड में जो एच है वो आ साउंड प्रोड्यूस करता है, और वही आ साउंड जो है वो कौन सा साउंड है? वावल साउंड है, क्योंकि उसमें एयर स्टॉप नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वावल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावल्स, इन तीनों में डिफरेंस किया है। ये तीनों कौन कौन से हैं और वावल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावल्स कौन से साउंड्स या लेटर्स को कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद हम आते हैं कि वावल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, वावल्स और सेमी वावल्स का फंक्शन क्या है। तो वावल्स और सेमी वावल्स का जो फंक्शन है वो ये है कि ये कॉन्सोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और उससे वर्ड्स बनाते हैं। यानी वावल्स और सेमी वावल्स का काम यह है कि वो कॉन्सोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से मिलाता है और उससे अल्फाज बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सी और टी, ये दोनों क्या है? ये सी भी कॉन्सोनेंट है और टी जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, और इनके दरमियान ये ए जो है, ए, ये क्या है? ये है वावल। तो ये वावल इन दो कॉन्सोनेंट्स को एक दूसरे से मिलाकर वर्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरह पी और एन, ये दोनों क्या है? ये है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट कौन मिलाता है? ई। ये एक दूसरे के साथ मिलाने वाला जो फैक्टर है, जो चीज़ है, वो क्या है? वो है ई। और ई क्या है? ई हमारे पास है वावल। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। इसी तरह इस और एन, ये दोनों क्या है? ये है कॉन्सोनेंट, और इनके दरमियान ये क्या है? ये है वावल। तो दोनों कॉन्सोनेंट को मिलाकर वो वर्ड बनाता है। सिमिलरली सन और सेन। ठीक है, सेन गुनाह को कहते हैं, गुनाह। ये है गुनाह, ये है सूरज, और ये है बेटा। ओके गाइज, आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि जो बेसिक कंसेप्ट्स है इंग्लिश के वो क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इन कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा, लेकिन चूँकि बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि ये तो क्लास 3rd, 4th, 5th के टॉपिक्स हैं और उसके कंसेप्ट्स हैं, इस वजह से मैं सोच रहा था कि आपके माइंड से ये निकल चुके होंगे तो आपको वो चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये नहीं है तो उनके लिए तो अभी उसने अंडरस्टैंड किया होगा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं कि अब आपके माइंड में मैंने एक स्ट्रक्चर रखना है, आपने वही स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखते हुए आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लेटर्स, लेटर, लेटर। ठीक है, ये लेटर्स जो है ये मिलके वर्ड बनाता है, और हमने यहाँ पे देखा भी, देखें कि लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर, ये तीनों लेटर्स मिलके क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। तो लेटर्स के मिलने से, लेटर्स के एक दूसरे से जोड़ने से क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह वर्ड्स, वर्ड, वर्ड, ये सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस, 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 ये सेंटेंसेस मिलके फिर पैराग्राफ बनाता है, और वही पैराग्राफ्स, पैरा प्लस पैरा प्लस पैरा, ये पैराग्राफ्स मिलके ऐसे बनाता है, स्टोरी बनाता है, नावल्स बनाता है, इसके अलावा जितनी भी हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से हमने किया? लेटर से हमने शुरू किया है, और ऐसे या स्टोरी इस पे हम ख़त्म करेंगे। अभी समझ आया गाइस? मैंने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में भी ये बात कही थी कि हम शुरू करेंगे लेटर से और ख़त्म करेंगे ऐसे, स्टोरी, एप्लीकेशन, इन पे। ओके गाइस, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई आपके माइंड में इस तरह क्वेश्चन हो कि आपको क्लियर ना हो कोई चीज़, तो आप प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके,
एक काम करते हैं, मैं ये रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक बोर्ड पे लिखता हूँ, आप इसका एक पिक्चर ले लें, एक तस्वीर ले लें इसका, और दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन सामने आया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, तो वो भी मैं साथ क्लियर कर लूँगा, ठीक है। आप इसका एक पिक्चर ले लें और एक मिनट सब्र करें, मुझे साथ नहीं लेके आना। वो क्या कहते हैं, वो एक बहुत मशहूर वो था, एक क्लिप था, सनाउल्लाह तस्वीर वाखला, तो सनाउल्लाह वाला तस्वीर नहीं लेके आना, ठीक है। आगे ओके गाइज, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि लेटर्स मिल के वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिल के सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस मिल के पैराग्राफ्स बनाते हैं, और पैराग्राफ्स मिल के ऐसे स्टोरीज़ वगैरह बनाते हैं। यहाँ तक जो है उनमें जो सबसे पहला है वो है लेटर, और लेटर को हमने डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया कि लेटर्स में वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वावल्स, फिर उनका फंक्शन, ये सारे हमने अंडरस्टैंड किया। अब लेटर के बाद जो आता है कि लेटर मिलके वर्ड्स बनाते हैं, तो अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स मीनिंग एंड कैन बी प्रोनाउंस। इसमें तीन बातें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि वर्ड जो है वो लेटर्स का एक ग्रुप होगा, एक मजमुआ होगा। दूसरी बात, ये हमें मानी देगा, और तीसरी बात यह है कि हम उसे प्रोनाउंस कर सकेंगे, अदा कर सकेंगे, ठीक है। ये तीन बातें आपने एक वर्ड में ज़रूर देखनी है। यहाँ पर अगर आप देखें पेन, PE और N, यहाँ पर देखिए एक लेटर, दूसरा, तीसरा, 3 लेटर्स हैं, यानी लेटर्स का क्या है, एक ग्रुप है, मजमुआ है। दूसरी बात, हमें मानी देता है, पेन कैसे कहते हैं, कलम को, ठीक है, पेन जिस पे हम लिखते हैं। और तीसरी बात जो इसमें है वो है कि कैन बी प्रोनाउंस, तो हम इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पेन मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ पेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्ड। इसी तरह बुक, एक लेटर, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या है, लेटर्स का एक ग्रुप है। दूसरी बात, हमें मीनिंग भी देता है, बुक किसे कहते हैं, किताब को। और तीसरी जो है, हम इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, बुक, बुक अदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्कूल को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेटर्स का एक मजमुआ है, ग्रुप ऑफ लेटर भी है। ये हमें मानी भी देता है और हम इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स मीनिंग एंड कैन बी प्रोनाउंस, दैट इज अ वर्ड। सिंपल बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर ए और आई ये दोनों भी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ एक लेटर पे मुश्तमिल हैं, ठीक है। ए अगर आर्टिकल के तौर पर आ जाए, ठीक है, और आई अगर प्रोनाउन के तौर पर आ जाए, तो फिर ये दोनों अकेले वर्ड्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, आई एम आ बॉय, ठीक है, आम अ बॉय या आम अ टीचर। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आई जो है एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो ये अकेला एक अलग वर्ड है। यहाँ पर ए जो है ये एज एन आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी एक वर्ड कंसिडर होता है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है ना कि सर ये वर्ड्स कंसिडर होते हैं, तो बिल्कुल ये वर्ड्स कंसिडर होते हैं। यहाँ पर ये दोनों अकेले लेटर्स जो हैं ये इंग्लिश में वर्ड्स कंसिडर होते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये मिलके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, अल्फाज का मजमुआ जो हमें पूरी मानी देता है, पूरा मतलब देता है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। दो बातें आपने सेंटेंस के बारे में अपने माइंड में रखना है। एक है
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि ये अल्फाज का मजमुआ होगा। दूसरी बात, ये हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, पूरा मानी, पूरा मतलब। ठीक है, ये दो बातें अपने माइंड में रखने हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि ही ड्रिंक्स वाटर। यहाँ पर देखें, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, और ये हमें कंप्लीट मानी भी देता है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। तो दूसरी बात जो है वो भी क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आ जाए कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 6 वर्ड्स हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बात तो कंप्लीट है। यहाँ पर द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर पड़ी है। ठीक है, किताब मेज़ पर पड़ी है या किताब मेज़ पर पड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मानी भी देता है। तो इससे मालूम होता है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सेंटेंस के बारे में आपने एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं, क्योंकि कभी कभी एक वर्ड जो है वो भी पूरा एक सेंटेंस कंसिडर होता है। ठीक है, उस पर बाद में इंशाल्लाह लेंथी एक क्लास लेंगे, अभी उस पर ना जाए। अभी यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अपने क्या अंडरस्टैंड करना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि अल्फाज मिलके मीनिंग देता है, लेकिन वो पूरा मीनिंग, पूरा मतलब, पूरा सेंस नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेज हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओह, बट नॉट कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अल्फाज का मजमुआ तो है, ठीक है, लेकिन वो मजमुआ पूरा मीनिंग